Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 6th standard maths decimal fraction chapter number 5. In that the new question we are starting today, that is solve the following. In that the word problems are based on the division method. So here we are supposed to solve the first question. So I am reading the question, kindly listen very carefully. The first question is, the distance between Delhi and Bareilly is 278.4 kilometer. A train covers this distance in 6 hours. How much distance did the train cover in 1 hour? आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि दिल्ली से लेकर के बरेली तक का जो डिस्टेंस है वो 278.4 किलोमीटर है. अगर एक ट्रेन इस डिस्टेंस को 6 घंटे में पूरा करती है तो ऐसे ही ट्रेन ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपको बताना है. तो यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसे पहले अच्छी तरह से लिख लेंगे और फिर उसके बाद जो है सम को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द इन्फॉर्मेशन वी आर हैविंग अ डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू बरेली. So here we'll write down distance between Delhi to Bareilly is equals to 278.4 kilometer. Now train covers distance in 6 hours. Distance covered in 1 hour is equals to question mark. Therefore, distance covered in 1 hour is equals to 278.4 kilometer divided by 6 hours है ना. So therefore अब जो है हम इसको क्या करेंगे, वर्टिकल डिवीजन में कंप्लीट करेंगे. लेट अस गो विद दैट. 6 we had written here at the place of divisor, then this is the dividend. Now let us solve the division. So here 6 4s are 24 minus it will be 3. Now let us take the 8. So 6 6s are 36 minus it will be 2. Again 4 we are writing here, so that's why decimal number should come over here. So 6 4s are 24 again. So like this way division, and the 0 0 is the remainder. So the answer of the division is, therefore the train covers the distance of 46.4 kilometer in an hour. ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है. लेट अस गो विद द सेकंड सम. Now second question, a boat covered a distance of 232.74 kilometer in 18 hours. What distance did it covers in 1 hour? Similar type of a question is given to you. आपको बोला है कि एक बोट जो है डिस्टेंस ऑफ 232 यानी 232.74 किलोमीटर का डिस्टेंस वो जो है 18 घंटे में कंप्लीट करती है. तो इस तरह से वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. तो यही तरीका जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है वैसे ही हम करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन डेटा है, हम उसको पहले लिख लेंगे. तो यहाँ पर what is given to us, total distance covered by the boat. So here we'll write down total distance covered by the boat
is equals to 232.74 kilometer. Now, number of hours to cover the distance. कितना लगा था डिस्टेंस कवर करने के लिए? 18 hours. तो 18 hours लीजिए. Now what we are supposed to find out? We are supposed to find out how much distance is covered in the 1 hour. So therefore, distance covered in 1 hour is equals to question mark. Therefore, distance covered in 1 hour is equals to 232.74 divided by 18. So therefore, अब जो है हम इसको क्या करेंगे? वर्टिकल डिवीजन में कंप्लीट करेंगे. Now let us start with the division. 232.74. Now it's 18. तो यहाँ पर 18 के टेबल में जो है 23 नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर हम ये दो नंबर ले रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पर 18 1 18 लेंगे. तो यहाँ पर 18 1 18 लिए, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? 23 minus 18, it will be 5. So here we had written 5. This 2 will come down, so it becomes 52. 52 is again not coming in the table of 18. So that's why we are going to take the 18 2s 36. So here we will take the 18 2s 36 minus, then now from the 12 6 is removed, so it will be again 6. And from the year it becomes 4. 4 minus 3, it's 1. So 16. 16 is much smaller than the 18. That's why we are supposed to take the 7 over here. When we are writing 7 downside, so this decimal should be put in the quotient. So it becomes 168. Now we'll take the 18 9s 162. So 18 9s 162 we have to then minus. After that it becomes here 5 and then 0 0 comes. So this 4 again comes down. So it becomes 54. Now 54 do comes in the table of 18 at the place of 3. So here we'll write down 3. So it becomes 54 minus and then 0 0. So like this way we have completed our division till here. So therefore we are supposed to write down distance covered in an hour is 12.93 किलोमीटर्स. तो इस तरह से हमारा जो है सेकेंड सम भी कंप्लीट होता है. Now the question number 3 we are going to solve further. A sum of rupees 3,486.45 was equally distributed among 33 workers. How much did each worker get? आपको क्या बोला है कि 3,486.45 रुपीज जो है 33 वर्कर्स में इक्वली डिवाइड किया गया है. तो आपको बोला है कि हर वर्कर को कितना जो है रुपीस बराबर से मिलेगा वो आपको बताना है. तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है? टोटल अमाउंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द wages that each worker have been got. So here similar way we will start our division. तो यहाँ पर हम जो है अपना डिवीजन सिमिलर वे में जिस तरह से हमने पहले डेटा लिखने के बाद किया था बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे. सो हियर टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 3,486.45
5। इसको हम इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर 3486.45 रुपीज। ठीक है, अब जो है हमको क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ workers is equals to 33. Now the total amount, the amount got by each worker is equals to question mark. Therefore amount got by each worker is equals to this divided by this. तो 3486.45 डिवाइडेड बाय 33। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, वर्टिकल डिवीजन में सॉल्व करेंगे। Now let us solve this. 33 divided by 3486.45. Now here what we are having, 33 is having no 34 number in its table, so that's why we'll take 1. So 33 ones are 33. So here we will have just a 1. हमारे पास 1 बचता है। हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 को अगर हम नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास 18 मिलेगा, जो कि हमारे पास बहुत ही छोटा नंबर है 33 से। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 भी लेना पड़ेगा। जब हम एक साथ 2 नंबर ले रहे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है 186 जो है हमने नंबर लिए, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे 10 हमने ले लिए क्वेश्चन में। अब जो है 33 के टेबल में जो है 165 कम्स एट द प्लेस ऑफ 5, so we'll take that, otherwise the bigger number will comes. तो 165 माइनस यहाँ पर ये लेंगे और इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है आंसर, 6 minus 5 1, 8 minus 6 is 21. Now this 4 we are taking here, so it becomes 214. 214 बहुत बड़ा नंबर है जो कि 33 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर ये डेसिमल जो है हम ऊपर भेजेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने 4 को नीचे यहाँ लिख लिए थे। तो इसके लिए जो है 33 6 लेंगे एंड दैट इज 198 माइनस, नाउ आफ्टर माइनस वी हैव गॉट हियर 116। तो ये 16 मिलने के बाद हमने क्या किए, इसको यहाँ पर 5 को नीचे लिखे तो ये 165 आ गया। अब जो है हम फिर से इसको 5 लिखेंगे और यहाँ पे 165 माइनस, so then 0 0 0, remainder is 0, so the answer is 105.65. so therefore each worker will get 1065 rupees। ये हो गया है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लेट अस गो विद द फोर्थ वन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, काइंडली लिसन इट वेरी केयरफुली। अ 29.750 meter long rope is cut into 4 equal part pieces. What is the length of each piece? मतलब जो है आपको क्या बोला है, 29.750 मीटर का लॉन्ग रोप था, यानी रस्सी थी, उसको कट करके उसके 14 जो है इक्वल पार्ट्स बनाए गए हैं। तो आपको बताया है कि हर एक पार्ट का लेंथ कितना है, यानी आप क्या फाइंड आउट करेंगे कि एक जो रोप का पीस है या पार्ट है उसका लेंथ कितना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो 29.750 है हम उसको 14 से डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, द लेंथ ऑफ अ ईच पीस ऑफ अ रोप। ठीक है, तो लेट अस गो विद द फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमने यहाँ लिखे टोटल लेंथ ऑफ अ रोप इज इक्वल टू 29.750 मीटर। नाउ लेट अस गो विद द नेक्स्ट वन।
number of pieces is equals to 14. Therefore length of one piece of rope is equals to question mark. Therefore यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, length of one piece of rope is equals to, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 29.750 डिवाइडेड बाय 1414. तो अब इसको हम क्या करेंगे, अपना वर्टिकल डिवीजन में डिवाइड करेंगे. Now let us go with the division of the 29.750. So here in the table of 14, 29 doesn't come, so we'll take the 14 twos are 28. 14 twos are 28 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा. ये 7 को यहाँ पर लिख रहे हैं, तब ये डिसिमल को हमको ऊपर भेजना पड़ेगा. तो इस तरह से हमारे पास 17 आ गया है. तो अब हम क्या करेंगे, 14 1s are 14 लेंगे, माइनस इट विल बी 3. तो 3 के बाद हम यहाँ पे 35 लिखेंगे, तो इट विल बी 14 2s are अगेन 35. तो यहाँ पर हमने लिए 17 2s are 14 2s are 28. 28 लेने के बाद हमारे पास यहाँ कितना बचता है, 7 बचेगा. तो ये 0 को हम यहाँ नीचे लिखते हैं, तो हमारा कितना बन जाता है, 70. तो अब इस 70 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, तो ये टेबल में आता है 14 के एट द प्लेस ऑफ 5. सो इट विल बी 17. 14 5s are 70. सो 0 0. सो इस तरह से हमारा डिविजन कंप्लीट होता है. सो विल राइट डाउन द आंसर दैट लेंथ of each piece of rope will be 2.125 meter. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है. Now let us go with the question number 5. A road is 4 kilometer 800 meter long. If trees are planted on both of its sides at intervals of 9.6 meter, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड. आपको क्या बोला है, एक जो रोड है वो कितना लंबा है, 4 किलोमीटर से लेकर 800 मीटर लॉन्ग तक के एक लंबा सा जो है रोड बना हुआ है, और उसके दोनों साइड्स पर जो है ट्रीज लगे हुए हैं. लेकिन इंटरवल्स मतलब दोनों के बीच में, दो ट्रीज के बीच में डिस्टेंस उसने कितना दिया है, 9.6 मीटर का. तो आपको बता रहा है कि इस तरह से कितने ट्रीज जो है वो लगाए गए हैं. तो आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ रोड जो है वो किलोमीटर और मीटर में दी है, तो हमको पहले इसको कन्वर्ट करके किस में लेना पड़ेगा, मीटर्स में लेना पड़ेगा. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले जो लेंथ दी हुई है रोड की उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर्स में. तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ अ रोड, हम यहाँ पर लिखेंगे. तो ये जो है किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ रोड is equals to 4 kilometer and 800 meter. 800 मीटर. ये इस तरह से जो है आपको दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो है हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, 4 into 1000 प्लस 800 मीटर. सो क्योंकि ये किलोमीटर में ना, तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 4000 प्लस 800 मीटर इज इक्वल्स टू 4800
मीटर। तो अब जो है हम इसको यूज करेंगे। अब जो है आगे का काम जो है हमारे इसमें क्या दिया हुआ है कि कितने डिस्टेंस पे ट्रीज जो है लगाए गए हैं एट द इंटरवल ऑफ द 9.6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रीज प्लांटेड ऑन रोड at 9.6 मीटर, है ना। जो रोड पर ट्रीज कितने डिस्टेंस पे लगाए गए हैं, 9.6 पर लगाए गए हैं। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड is equals to question mark. Therefore, number of trees planted is equals to 4,800 meter divided by 9.6 मीटर। तो इसको जो है हम अब क्या करेंगे, अपना वर्टिकल डिवीजन में सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो ये है 408 मीटर डिवाइडेड बाय 9.6 मीटर ये दिया हुआ है। हमने अब तक जो भी डिवीजन किए हैं उसमें हमारे पास न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में डेसिमल होता था और डिनोमिनेटर में डेसिमल नहीं होता था। अब हमारे पास यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो डेसिमल है हम वो हटा देंगे। तो डेसिमल किस तरह से हटाएंगे, यहाँ पर देखिए ये 4 × 800 है और ये कितना है 9.6 है। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाना चाहते तो डेफिनेटली हमको जो है इसके न्यूमरेटर में एक जीरो को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पर 48,000 डिवाइडेड बाय 96। तो अब जो है हमारी डिवीजन होगी वो किस तरह से होगी, 48,000 डिवाइडेड बाय 96 होगी। तो यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, 96 देन 48,000। अब जो है 48 जो है वो 96 के टेबल में आता है एट द प्लेस ऑफ 5। तो यहाँ पर हम क्या है 480 लेंगे। ये 480 जो है वो 96 के टेबल में एट द प्लेस ऑफ 5 आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली 5 ले लेंगे। तो 480 देन -000। ओके, अब ये 2 जीरो जो बच चुके हैं हम इनको क्या करेंगे, क्वेश्चन पे यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह से जो है हमारा डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। तो यानी हमारे पास कितने टोटल ट्रीज लगाए गए हैं, ट्रीज वर प्लांटेड आर इन द नंबर ऑफ 500। तो हमारा यहाँ पर आंसर किस तरह से होगा, देयरफॉर ट्रीज प्लांटेड ऑन बोथ sides of a road is equals to 500। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, फिर आप उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में कोई भी जो है ज़रूरतमंद है वीडियोस को देख करके सीखना चाहते हैं तो आप उनके साथ इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 6th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शन। In that yesterday we have completed from the question solve the following till the 5th question. Today we are going to solve the question number 6. So the question is, Pradnya exercises regularly by walking along a circular path on a field. If she walks a distance of 3.825 kilometer in 9 rounds of the path, how much does she walk in 1 round? आपको क्या बोला है कि प्रज्ञा जो लड़की है वो रेगुलर एक्सरसाइज करती है सर्कुलर पाथ के
अलोंग पे, तो अगर वो 9 राउंड्स लेती है और टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है 3.825 किलोमीटर का, तो इस तरह से वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है हमको ये बताना है। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है दैट विल राइट डाउन। सो योर टोटल डिस्टेंस कवर्ड is equals to 3.825 kilometer. Number of rounds is equals to 9. And what it is asked? The distance covered in one round. So your distance covered in one round is equals to question mark. Therefore, distance covered in one round is equals to 3.825 divided by 9. So like that way we will complete this division in the vertical method to solve it and get the answer. Now here the 3.825. Now if we only take the 3 is much smaller than the 9, so that's why we are supposed to remove this decimal first of all. So that's why we will put here 0 point. Then we can take this two number together. So here how we will take this? It will be look like that. 0 पहले लेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। अब ये 8 को नीचे लिख करके हम क्या करेंगे, 38 बनाएंगे। 38 बनने के बाद we can take 9 4s are 36 minus how much it remains, again 2 will remain. So this 2 is smaller, so that's why we'll take the 2 downside. Now 9 2s are 18, so we will take 9 2s are 18 minus it will be 4, so this 5 will come down, so here it becomes 45. So 9 5s are 45 minus 0 0. So the answer is 0.425. So we have to say that distance covered in one round is equals to 0.42 meter, like this one. Now the question number 7. A pharmaceutical manufacturer bought 0.25 quintal of Hirada, a medicinal plant, for 9,500 rupees. What is the cost per quintal of Hirada? Now 1 quintal is given as 100 kilograms. आपको क्या बोला है, ध्यान से देखिए। एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर ने 0.25 क्विंटल जो है हिरडा यानी मेडिसिनल प्लांट खरीदा है, कितने रुपए दे करके, 9,500 रुपीज दे करके। तो आपको ये बताना है कि एक क्विंटल का कितना कॉस्ट हुआ है। तो ये द टोटल amount of Hirada plant is bought given to us, so that we will write down, and the another rupees is given, so that we will write down together and start our division. So total quantity of Hirada plant is equals to 0.25 quintal.
Now, another one is given to us, total cost of plant is equals to 9,500 rupees. Now, before going to start, we are supposed to find out the cost of the 1 quintal of a plant. So, here cost of 1 quintal of plant इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अब ये जो क्विंटल है हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर. नाउ दिस देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ प्लांट is equals to 9,500 divided by 0.25. ये यहाँ पर आ गया. अब यहाँ पे हमको क्या करना है, डेसिमल्स को हटाना है. तो इसका एक्चुअली जो है किस तरह से होगा, 9,500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू, यहाँ पे क्विंटल है ना, तो क्विंटल का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100. So here we will multiply this by the 100. So the decimal will be removed in such a way that 9,000, it will become 95,000. So यहाँ पर ये 95,000 upon 25 आ गया. अब इसको हम जो है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन डिविजन करके आंसर फाइंड आउट करेंगे. Now the division we will start here. Say 25 threes are 75. So here 75 we will take minus. It will be 5 minus 5 0. Here 9 minus 7 it will be 20. Now here 75 we have to. So these two zeros we will take. So 25 8s are 200. So here we'll take 25 8s are 200. Minus 0 0 0. Now these two remaining 0 we will write down over here in the quotient. So the answer will be 3,800. So it will be here like this way we had it in. So here it will be 38,000. So here the answer we will write down, cost of 1 quintal of plant is equals to 38,000 rupees. So like that way we have completed our 7th question. Now here the 8th question will go further. A cyclist covered a distance of 250.504 kilometer in 8 hours. What distance did he cover in 1 hour? Now here what is given? A cyclist covers the distance. Cover क्या बोला है, साइक्लिस्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है कितना, 250.50 किलोमीटर इन 8 आवर्स. आपको बताया कि 8 घंटे में वो 250.50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है. तो इस तरह से वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा हमको ये पता करना है. सो लेट अस गो विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. टोटल डिस्टेंस covered is equals to 0.504 किलोमीटर्स. यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स is equals to 8. Now distance covered in 1 hour is equals to question mark. Therefore
distance covered in 1 hour is equals to 250.504 divided by 8. So this will solve in the vertical division and get the answer. Now here the first number is 25. In the table of 8, 25 doesn't come, but the smaller than the 25, it's 24 is coming in the table of 8 at the place of 3. So here 8 3s are 24 minus 0 1. This we are taking here downside, so it becomes 10. So 8 1s are 8 minus it will be 2. Here this we are taking here 5. So this 0 we are supposed to write down in the question. So again 8 3s are 24 minus 1. Then again 0. 8 1s are 8. How much it will be? 2. Then this 4 will come down. So 8 3s are 24 minus 0 0. So like that way we have completed our division, and the answer of the division is 31.313, like this way. So here we have to write down the answer. Therefore distance covered by cyclist in 1 hour is 31.313 kilometers. So like that way we have completed our question till the 8th one. So like this way we have completed the word problems based on the division method of the fractions. So here we are ending up. Inshallah in the next video we'll take the next part of the chapter. Till here we have completed. You are supposed to complete your book according to that. Now I like to request you to like the video, subscribe the channel and share the video with the others. Assalamu alaikum. Jazakallahu khair.